students. Today, first of all, I want to ask you, how are you? I think you all are fine and healthy and energetic enough to learn today's lesson. Today we will first learn what are the types of journal entries. There are two types of journal entries. One is the simple journal entry and the other is the compound journal entry. Simple journal entry, compound journal entry क्या हमने previous lessons में भी verbal discussion किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम ठीक से इन्हीं को फोकस करके देखेंगे. Simple journal entry is a journal entry in which only two accounts are affected. दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, उसमें से एक को डेबिट कर दिया जाता है एंड द अदर इज क्रेडिटेड विद एन इक्वल अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. हियर द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट. हियर द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट. बिजनेस में कैश आ रहा है, ये आपका बिजनेस है, ये प्रोप्राइटर है, इसने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया कैपिटल के रूप में. तो बिजनेस में कैश असेट इंक्रीज हुआ और प्रोप्राइटर ने कैश को कैपिटल के फॉर्म में, बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी है इसलिए इसको कैपिटल को क्रेडिट करते हैं. कैश अकाउंट डेबिट, सपोज 1 लाख से बिजनेस शुरू हुआ है तो ये इस तरह से हो जाएगा. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एक अकाउंट डेबिट हुआ, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. ठीक है, इसको हम सिंपल जर्नल एंट्री कहते हैं. वेजेस पेड, वेजेस पेड, यहाँ एक्सपेंस क्या है, वेजेस, तो यहाँ पर वेजेस डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट. कैश रिड्यूस होगा, जितना भी अमाउंट है वो लिख देते हैं फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में किया जाता है एंट्रीज को. ठीक, एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि बोर्ड थोड़े छोटे हैं इसलिए एक्सप्लेनेशन के लिए आई में पास द एंट्रीज विदाउट द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, without narrations, but students, you take care of it. Whenever you pass the journal entries, you first have to draw the proper journal formats and also you have to write the narrations. Only then full credit will be given, otherwise your marks deduction will be there. Near about 50% marks are deducted if you don't draw the formats, and formats too also be drawn with the help of scale. I have seen the work of many students who are not using the scale for drawing the formats. So students, please take care of it, and also remember that always use scale for drawing the formats of journal. So here in this case, in both the entries you may see that one account is debited and other is being credited. Similarly here, wages paid, wages account debit to cash. Here also wages account को एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसको हम सिंपल जर्नल एंट्री कहते हैं. और व्हाट आर कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, जहाँ पे वन से ज़्यादा अकाउंट आइदर डेबिट होते हों या क्रेडिट होते हों, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री. ठीक, दो से मतलब एक से ज़्यादा या तो डेबिट होते हों या क्रेडिट होते हों, तो उसको हम, क्रेडिट भी दो से ज़्यादा हो सकते हैं और डेबिट भी दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनकी अमाउंट कैसे आएगी, इक्वल. तो कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है, कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल entry. Compound journal entry is the entry in which more than two accounts
accounts are affected, दो से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, दैट इज वन और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड and one or more accounts are credited or vice versa. For example, a sale of rupees, for example, business started with cash rupees 5,000, furniture rupees 6,000, building rupees 10,000. Now 3 items are there. The business is being commenced, that is started. 3 चीज़ों से business start हो रहा है. All these 3 things are assets and coming into the business. Hence all these assets are increasing in the business. All these assets will be debited because they are increasing. The entry will be cash account debit, furniture account debit, cash account debit with rupees 5,000, furniture will be debited with rupees 6,000 and building will be debited with rupees 10,000. In all, the capital is worth rupees 21,000. Here we will write the narration. Business started with cash, furniture and building. Okay. Up in next video, another example we will take. Suppose cash paid to Harish rupees 24,000 in full settlement of his debt of rupees 25,000. हरीश को पेमेंट 25 में से 24 का किया है, बाकी रिमेनिंग हो गया डिस्काउंट. तो अब यहाँ पर हरीश को पेमेंट हो रहा है. तो हरीश हमारा क्रेडिटर था जिसे हम पेमेंट करना था. क्रेडिटर रिड्यूस हो रहा है, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो हरीश डेबिट हो गया. 25,000 से हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है टू कैश अकाउंट 24,000 to discount received rupees 1,000. Here in this entry you may see that 2 accounts are being credited and 1 is debited. लेकिन you may see कि दोनों की अमाउंट डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट. तो जहाँ पर एक से ज़्यादा अकाउंट या तो डेबिट होते हों या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होते हों उसको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं. ज़रूरी नहीं है या एक ही अकाउंट या दूसरा अकाउंट भी डेबिट हो सकता है. मोर देन वन अकाउंट कैन बी डेबिटेड, मोर देन वन अकाउंट्स कैन बी क्रेडिटेड. Now we will do practice of few more special transactions. They will be
bad debt. First I am taking bad debt. Bad debt क्या होता है? What is bad debt? अब bad debt को देखने के लिए हम पहले देखेंगे debtors. Debtors कौन है? These are the customers to whom the goods are sold on credit. They are the debtors. Debtors may be good, bad debt. Debtors may be good debt, bad debt, or doubtful debt. Doubtful debt. The persons of the parties from whom the full payment is to be received certainly, कि हमें श्योर होता है कि फिक्स अमाउंट हमको मिलेगा. They are the good debts. They are included in the category of good debt. What are bad debt? Those who will not pay, जिन्होंने हमें पे किया नहीं, who have not paid the amount of their dues, they are bad debt. और जिनका doubtful है, they may pay और they may not pay. उनको हम doubtful debt में डालते हैं. तो bad debt is a loss for us. और losses और जितने भी expenses होते हैं, they are debited. ठीक है? तो मे बी कि पूरा अमाउंट bad debt हो और मे बी कि कुछ पार्ट bad debt हो और बाकी रिमेनिंग हमें रिसीव हुआ. तो इसका फर्स्ट केस देखेंगे. When full amount is irrecoverable. जब हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, सारा का सारा बैड डेब्ट है, तो उस केस में एंट्री होगी bad debt account debit, bad debt account debit to debtors personal account. debtor का नाम लिखेंगे किसने bad debt किए, यानी कि वो debtor अब reduce हो गया क्योंकि उससे अब हमें मिलने वाला नहीं है. ठीक है? तो ये एंट्री होती है when full amount is irrecoverable. तो हमारा पूरा पैसा बैड डेब्ट हो गया और फिर हम उस बैड डेब्ट को क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं. उस बैड डेब्ट को क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं. ठीक है? इसमें नेक्स्ट केस करेंगे हम व्हेन ए पार्ट ऑफ, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, द डेब्ट इज रिकवर्ड. जब कुछ हिस्सा रिकवर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 25 पैसा in a rupee could be recovered या realized from a debtor out of a debt of rupees 24,000. अब ये एग्जाम्पल है आपके सामने. 24,000 में से 25 पैसा इन ए रुपी कुड बी रिकवर्ड, यानी कि रिमेनिंग पर इसमें से 1/4, 25 पैसा मतलब 1/4 हमारा जो है रिकवर होगा, रिमेनिंग बैड डेब्ट हो जाएंगे. तो हमारे पास कैश कितना आ जाएगा? 1/4. कैश इंक्रीज होगा 1/4 ऑफ 24,000, 6,000 आएगा. 6,000 रुपीज कैश आ जाएगा. रिमेनिंग हमारे बैड डेब्ट हो जाएंगे. बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 18,000 टू डेटर. डेटर का नाम गिवन हो तो डेटर का नाम लिखेंगे आप 24,000. इस तरह से हम एंट्री बनाते हैं. जितना कैश रिसीव हो गया 6,000 वो डेबिट हो जाएगा. जितना लॉस है हमारे पास 18,000 वो भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि लॉस है इसलिए डेबिट हो रहा है.
और डेटर हमारा रिड्यूस हो गया इतने अमाउंट से, इसलिए ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ₹5000। अच्छा हाँ, इसमें प्रैक्टिस से पहले एक ट्रांजेक्शन और सीखेंगे, बैड डेब्ट रिकवर्ड। कई बार क्या होता है, जो पेड़ सूख गया वो फिर से हरा भरा हो जाता है खाद पानी मिलने से। तो जो बैड डेब्ट हमारे हो चुके, जैसे सपोज यही केस है आपका, 18,000 बैड डेब्ट हो गए, मान के चलो इसमें से कुछ अमाउंट रिकवर हो गया या पूरा अमाउंट रिकवर हो गया, तो उसको हम कहते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। ठीक है, अ डेटर हुज अकाउंट वाज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट में पे द अमाउंट पार्टली और फुल्ली। जिसका अमाउंट, जिस डेटर का अमाउंट हमने पहले अर्लियर हमने बैड डेब्ट लिख दिया था, उससे हमें लेटर ऑन आफ्टरवर्ड्स कुछ पैसा या पूरा पैसा रिकवर हो सकता है, उसको हम फिर बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट से क्रेडिट करते हैं, क्योंकि दैट इज अ गेन फॉर अस। और उस केस में सपोज हमने यही एग्जांपल को कंटिन्यू किया, ये हमारा जो बैड डेब्ट था वो 18,000 था, तो अब आपको एंट्री मिलेगी, आगे ट्रांजैक्शन मिलेगा, बैड डेब्ट रिकवर्ड। जो आपने अर्लियर बैड डेब्ट लिखे थे, बैड डेब्ट रिकवर्ड ₹18,000, तब इसमें एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या हुई, तो ट्रांजैक्शन हो गया आपका, दिस इज योर ट्रांजैक्शन। अब एंट्री क्या होगी, कैश आ रहा है या चेक आ रहा है, जो भी आ रहा है। चेक अगर बैंक में डिपॉजिट हो जाता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ₹18,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग बैड डेब्ट रिकवर्ड। अब कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, एक प्रैक्टिस है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इसमें नंबर 1 है ₹5,000 ड्यू फ्रॉम next video. Let's take some transactions for further practice. ₹5,000 due from Ramesh are irrecoverable. ये irrecoverable है, तो इसकी एंट्री कैसे बना। irrecoverable का मतलब क्या हो गया, ये हमारे हो गए बैड डेब्ट, और बैड डेब्ट के लिए हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट हमारा लॉस है, तो हम फॉर्मेट बना करके जर्नल का फॉर्मेट बना करके, बैड डेब्ट है ये हमारे, तो बैड डेब्ट लॉस है, बैड डेब्ट डेबिट हो जाएगा। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश, अमाउंट हो गया हमारा 5,000। नरेशन बीइंग ₹5,000 due from Ramesh are now bad debt. Next is second, Sohan is declared insolvent. Sohan is declared insolvent, received from his
ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन अ रुपी, 60 पैसा इन अ रुपी on a debt of rupees, debt of rupees 10,000। अब ये सोहन इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट कौन होता है? हु इज नॉट सॉल्वेंट। हु इज नॉट सॉल्वेंट मीन्स हु इज नॉट कैपेबल टू पे हिज डेट। वो दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्ट होता है, उसे ही कहते हैं इंसॉल्वेंट। अब वो 10,000 में भागते भूत की लंगोटी बनी, 10,000 में से 60 पैसा दे रहा है, तो जो दे रहा है वही ले लो। तो 10,000 का 60% हो जाएगा 6,000। ये कैश आएगा, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 6,000। रिमेनिंग वो बैंकरप्ट हो चुका, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो रिमेनिंग हमारा हो गया 4,000। बैड डेब्ट हो गया, अब ये हमको नहीं मिलेगा। बैड डेब्ट अगर मिलेगा तो फिर बैड डेब्ट रिकवर्ड से एंट्री होगी लास्ट में। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, ये इस तरह से 10,000 हो गया टू सोहन। सोहन है इसमें, टू सोहन 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसा इन अ रुपी could be received from his official receiver. Next is received cash for a bad debt return of last year rupees 700. Next third transaction है received cash for a received cash for a bad debt return of bad debt return of last year rupees 700। जो हमने लास्ट ईयर हमने बैड डेब्ट मान लिए थे, उसमें से 700 रुपये हमें मिल रहे हैं, तो ये थर्ड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट हमें 700 मिल रहे हैं टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट 700। तो इस तरह से बच्चों ये गेन है बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, तो ये इसलिए हमने इसको क्या किया है, क्रेडिट किया है। अब कुछ ट्रांजैक्शंस और ले लेते हैं हम, तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। टेक फ्यू मोर ट्रांजैक्शंस फॉर प्रैक्टिस। चैरिटी डन इन कैश, चैरिटी मतलब दान देना। अब यहाँ पर हम चैरिटी कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी, चैरिटी हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस हो गया, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अगर हमने चैरिटी कैश की है तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश 100 रुपीज़। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश गिवन इन चैरिटी, कैश गिवन इन चैरिटी। नेक्स्ट है गुड्स गिवन इन चैरिटी। अब हमने चैरिटी कैश की ना करके चैरिटी गुड्स की है, तो यहाँ हो जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स गिवन इन चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन इन चैरिटी, यहाँ लिख देंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन है लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट, चोरी हो गई कैश की, तो लॉस है हमारा, लॉस डेबिट होगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना
कितना लॉस है 300 रुपीज। अगर कैश का लॉस है तो कैश टू कैश आ जाएगा, और अगर गुड्स का लॉस है तो टू परचेज आ जाएगा। नरेशन लिख देंगे, लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट। नेक्स्ट इज फोर्थ, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। फोर्थ वाला है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। अब यहाँ क्या एंट्री बनेगी, यहाँ एंट्री बनेगी, लॉस है तो लॉस को क्या करेंगे हम, डेबिट, लॉस ये डेबिट होगा, तो फोर्थ हो गया लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। किस चीज का लॉस है, गुड्स का, तो यहाँ आ जाएगा टू परचेज अकाउंट 600 रुपीज। बच्चों अब ये लॉस है जैसे, तो हम इससे इंश्योरेंस से क्लेम भी कर सकते हैं। अब इंश्योरेंस हमें फुल रिकवरी भी दे सकता है या थोड़ा कम भी दे सकता है। तो इसकी आगे एंट्री में इसमें और थोड़ा सा बताती हूँ। वो किसी भी केस में, किसी भी लॉस में अगर आप इंश्योरेंस क्लेम मांग रहे हो तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस क्लेम डेबिट टू लॉस, अगर इंश्योर्ड है आपका, बाय थेफ्ट। आप पूरी रिकवरी मांगोगे, पूरा क्लेम मांगोगे। मान लिया 600 रुपीज आपने क्लेम की रिकवरी मांगी, तो ये बीइंग इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹600। अब इस 600 में से मान के चलो आपको 400 रुपए ही मिल पा रहे हैं, इंश्योरेंस पूरा पैसा कभी भी नहीं देता। उस केस में आपका कैश या चेक जो भी आ रहा है, बैंक, दोनों में से एक चीज आएगा। अकाउंट डेबिट, मान के चलो 400 रुपए आ रहा है, रिमेनिंग अभी हमारा लॉस हो रहा है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस P&L, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 200 रुपए से। अगर ये पूरा पैसा 600 का 600 इंश्योरेंस क्लेम हमें दे देता तो कैश और बैंक डेबिट हो जाता 600 से, यहाँ आ जाता टू इंश्योरेंस क्लेम, कितना 600। ठीक इस तरह से एंट्री हो सकती है अगर गुड्स इंश्योर्ड हो। अब हम फिफ्थ करते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा सिखा दिया आपको, यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं लिखा, लेकिन इंश्योरेंस के केस में, किसी भी लॉस के केस में इंश्योरेंस की एंट्रीज पूछी जा सकती हैं। नंबर 5, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर आप पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ एंट्री बन जाएगी नंबर 5, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग होगा, बिजनेस से ड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, टू कैश विड्रॉ किया, बिजनेस से कैश रिड्यूस हुआ 500 रुपीज का। असेट रिड्यूस होता है तो डेबिट होता है, ड्राइंग इज ऑल्सो असेट, ड्राइंग क्रिएट हो रहा है, ये डेबिट हो गया। नरेशन लिख देंगे इसकी हम, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट इज गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, वहाँ एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, और अमाउंट जो है वो इस तरीके से फिल हो जाएगा। तो ये कुछ और हमने एग्जांपल्स लिए। अब थोड़ा एडवांस का और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कंसेप्ट और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब आपने यहाँ फ्री सैंपल्स, एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, फ्री सैंपल्स इसीलिए बांटे जाते हैं जिससे कस्टमर की डिमांड क्रिएट हो। तो यहाँ पर हम फ्री सैंपल्स भी लिख सकते हैं, फ्री सैंपल्स ऑब्लिक हम एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। अकाउंट डेबिट
और 2 परचेजेस। अमाउंट जो भी हो वो फिलअप कर देते हैं। एंट्रीज आपको फॉर्मेट में ही करनी है और नरेशंस के साथ करनी है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम करते हैं given to Mr. Rajiv, an advance of rupees 5,000 ट्रेवलिंग एडवांस है। कौन सा एडवांस है ये? ट्रेवलिंग एडवांस ऑफ रुपीज 5,000 टू राजीव। एडवांस हमारा असेट है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में होगा, तो एंट्री बन जाएगी ट्रेवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। नरेशन being the traveling advance given, being the traveling advance given. Next is Rajiv submitted a bill of rupees 4,750। राजीव को जो हमने एडवांस दिया था 5,000 का, इसमें से राजीव ने जो बिल हमें दिया है, राजीव सबमिटेड a bill of rupees 4,750, है ना? सबमिटेड अ बिल ऑफ रुपीज 4,750। ये कौन सा बिल है? ट्रेवलिंग बिल है। एंड he refunded the balance, अब हमारा एडवांस कितने से डेबिट था? 5,000 से, और बिल हमारा कितना है? 4,750 का। तो ये आ जाएगा हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 4,750। रिमेनिंग हमें उससे लेना है कैश, वो दे भी रहा है। कैश अकाउंट डेबिट 250, और ये जो ट्रेवलिंग एडवांस हमने ऊपर डेबिट किया था, इसको हम क्रेडिट कर देंगे टू ट्रेवलिंग एडवांस रुपीज 5,000। इस तरह से एंट्री बनेगी, और नरेशन लिखेंगे बीइंग द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एडजस्टेड थ्रू ट्रेवलिंग एडवांस। इट मे ऑल्सो हैपन कि आपका ट्रेवलिंग एडवांस 5,000 था और बिल कुछ ज़्यादा का आ जाए, उस केस में आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी में ही थर्ड ट्रांजेक्शन ले रहे हैं एग्जाम्पल का। राजीव सबमिटेड a bill of rupees 5,000 against the advance of traveling। अब ट्रेवलिंग एडवांस आपने 5,000 दे रखा था और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है 5,000, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू ट्रेवलिंग एडवांस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 5,500 का, और टू ट्रेवलिंग एडवांस कितना था? 5,000 का, और रिमेनिंग हमको कैश मिल जाएगा 500 रुपीज का।
इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। नरेशन लिख देंगे बीइंग द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एडजस्टेड अगेंस्ट ट्रेवलिंग एडवांस। रिमेनिंग एंट्रीज बच्चों नेक्स्ट टर्न पर होगी, एक पीडीएफ मिलेगी, ठीक, उसको देखना और उसमें क्वेश्चंस जो होंगे उसकी प्रैक्टिस करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।